بجانا مجھے تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بھی بات کریں گے موٹر وے ریپ کیس کے حوالے سے، جہاں ایک طرف قومی اسمبلی میں کل مسلسل اس پہ بحث ہوتی رہی، آج بھی اس پہ بات ہوتی رہی، وہیں آج سینٹ کے اجلاس میں بھی ایک بار پھر موٹر وے ریپ کیس کو ڈسکس کیا گیا. اور اس وقت جو پوری سوسائٹی میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ ریپ مجرمان کو سزا کیا دینی چاہیے، پھانسی دینی چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان کے قانون میں موجود ہے، یا پھر سرعام پھانسی دی جائے، یا پھر جس طرح سے پرائم منسٹر نے سجیسٹ کیا ایک ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو میں کہ جی کیسٹریشن کر دی جائے، کیمیکل کیسٹریشن یا سرجیکل کیسٹریشن. تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کا قانون اس حوالے سے کیا گنجائش نکالتا ہے؟ پاکستان کے سماج میں کون سی سزا قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پھانسی جو کہ آلریڈی موجود ہے، سرعام پھانسی یا پھر کیسٹریشن؟ اسلامی قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اور خاص طور پہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسا کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت کیسٹریشن، کیمیکل کیسٹریشن خاص طور پہ اس کا قانون موجود ہے، لیکن وہ کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ ہے. کہیں جو بہت سی ملکوں میں والنٹریلی کیمیکل کیسٹریشن کا جو ہے وہ آپشن سامنے رکھا جاتا ہے، جبکہ حکومت پاکستان میں اس بات پہ انتہائی سنجیدہ ہے کہ کیسٹریشن کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی. تو ریپ مجرمان کی سزا پاکستان میں کیا ہونی چاہیے، اسی پر آج ہم بھی پروگرام میں ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. اور سب سے پہلے اس ڈیبیٹ کو میں اوپن کروں گی ود نن ادر دین دا منسٹر، فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر مرکزی سرکردہ پالیسی ساز رہنما ہیں شیریں مزاری صاحبہ. السلام علیکم شیریں مزاری صاحبہ. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل، ابھی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے تو ویل ڈن، آپ نے تمام لوگوں کے، تمام خواتین کے خاص طور پہ دل جیت لیے. کل قومی اسمبلی میں جس طرح سے آپ نے خواتین کا مقدمہ لڑا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ عورت کی عزت صرف بحیثیت عورت، بحیثیت انسان ہونی چاہیے، کسی رشتے سے نہیں ہونے چاہیے. سو ویل ڈن شیریں مزاری صاحبہ فار دیٹ. اور اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت بحث ہو رہی ہے جو کہ نہ صرف سوسائٹی میں بلکہ قومی اسمبلی سینٹ میں بھی بحث ہو رہی ہے، ڈیوائیڈڈ ہیں دونوں ہاؤسز کہ جی سرعام پھانسی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے. پبلک ہینگنگز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے آلریڈی کیپٹل پنشمنٹ جیسے آپ کو پتا ہے جی. پبلک ہینگنگز میں دیکھیں ہر ایشو پہ ڈبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کئی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک کہ پبلک ہینگنگ سے یہ جو جرم ہے یہ ختم نہیں ہوگا. یہ جو کیا کہتے تشدد ہوتا ہے، جنسی تشدد بچوں پہ، بچیوں پہ اور عورتوں پہ خاص طور پہ، یہ ختم نہیں ہوگا پبلک ہینگنگ سے. ہم اس طرف نہ جائیں جو ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب لیشنگ ہو رہی تھی اسٹیڈیمز میں اور ایک تماشا شروع ہو گیا تھا. ہم اس کو تماشا نہیں بنانا چاہتے. اور دوسرا ہماری کوئی جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی کل اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہماری کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جی ایس پی پلس ہے اور ہے، جس پہ اس پہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا، لیکن اور بہت سے طریقے ہیں. دیکھیں سزا پہ ہم پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن یعنی کہ سوری شیریں صاحبہ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، بٹ یعنی کہ گورنمنٹ اس پہ بالکل کلیئر ہے، گورنمنٹ بالکل کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ پبلک ہینگنگز نہیں ہو سکتی، نہیں ہونے جا رہی، کوئی قانون نہیں بننے. میرا خیال میں اس پہ ڈسکشن آئی ایم شیور ہوگی. آج تو نہیں ہوئی کابینہ میں، بٹ اس پہ گورنمنٹ کا نے کوئی کلیئر، اس پہ یہ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ پبلک ہینگنگز ہوں گی. پرائم منسٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے، لیکن کچھ پرابلمز ہیں انکلوڈنگ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ. جو میں کہہ رہی ہوں کہ پبلک ہینگنگ سے اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو کہیں یہ سپورٹ نہیں آتی کہ پبلک ہینگنگ سے جرم کم ہو جاتا ہے. آپ ایران کا اگر اگزامپل لیں،
उन्होंने ड्रग्स के लिए पहले थोड़े से अमाउंट पे भी हैंगिंग्स कर दी थी। अब उन्होंने अपने कवानीन बदले हैं कुछ, क्योंकि हैंगिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा ड्रग्स स्मगलिंग पे। और आपको मैं जरूर ये याद दहानी कराऊं कि ज़ियाउल हक के जमाने में लोगों ने बड़ा कहा कि जी उन्हें पब्लिक हैंगिंग की तो रेप नहीं होता था। ये गलत है, रेप के केसेस होते रहे। बल्कि एक और मसला ज़ियाउल हक के जमाने में आ गया कि उन्होंने वो जो हदूद ऑर्डिनेंस लाए उसमें 4 विटनेसेस चाहिए होते थे, तो खवातीन के लिए एक मसला बन गया, क्योंकि रेप का अगर वो रिपोर्ट करें और वो विटनेस ना ला सके तो उनके खिलाफ एडल्ट्री का चार्ज लगने लगा था। और आपको सफिया बेगम बीबी का केस याद होगा, जो ब्लाइंड थी, नाबीना थी, और उनपे ये एडल्ट्री का केस लग के उनको लैशिंग्स ऑर्डर की गई। तो आप ये देखिए ना कि क्या फायदा हुआ पब्लिक हैंगिंग से। लोगों को आप ज्यादा खूनी बनाना चाहते हैं। असल प्रॉब्लम है हमारे मर्दों की ये वैश्य ज़हनियत को बदलना है, वो पब्लिक हैंगिंग से नहीं बदलेंगी। ठीक है। एंड बीइंग द मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, आपका इस पे स्टैंड क्या है? कैस्ट्रेशन की जो एक तजवीज प्राइम मिनिस्टर ने दी है, जिसपे फेडरल कैबिनेट के बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात पे एडमेंट हैं कि जी डेफिनेटली हम ये लॉ लाएंगे और इस लॉ को पास भी करवाएंगे, इवन दो अगर पब्लिक हैंगिंग्स का हम लॉ पास नहीं करवा सके। तो कैस्ट्रेशन को आप कैसे देखती हैं, खासतौर पे विज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग? देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की और जो हम डिस्कशन बिल्कुल इस पे होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन, जिसमें बेसिकली आपको कोई ऐसी वो जो कैस्ट्रेशन होती है फिजिकल, वो नहीं होती। केमिकल कैस्ट्रेशन आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कई ममालिक में वॉलंटरी होती है, लेकिन 10 यूएस में स्टेट्स हैं जिधर सेक्सुअल क्राइम्स के लिए ये है पनिशमेंट। नॉर्वे में है, वॉलंटरी नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, और बहुत से ममालिक हैं जिसमें ये है। मैंने पूरा इसमें रिसर्च करके सारे ममालिक के नाम भी निकाले हुए हैं। तो ये एक चीज है जो आप डिस्कस कर सकते हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन बहुत से ममालिक में सजा है सेक्स ऑफेंडर्स के लिए, खासतौर पे रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक चीज है जिसपे बहस हो सकती है और पब्लिक डिबेट हो सकता है, और फिर एक स्ट्रिक्ट का अगर इस पे कंसेंसस होता है और हुकूमत में कैबिनेट में अगर इस पे कंसेंसस होता है तो हमें फिर लेजिस्लेशन कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी असल मसला जो है वो हमारी जो वैश्य ज़हनियत है, जो ब्लड थर्स्टी वायलेंस है, और जिस तरीके से औरतों को देखा जाता है, औरत की इज्जत कनेक्ट करते हैं कि वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है या किसी की बेटी है। औरत को बहैसियत औरत नहीं देखा जाता कि बहैसियत औरत आपका फर्ज है, आईनी फर्ज भी है कि आप उसको इज्जत दें। बिल्कुल ठीक है। एक वन लास्ट क्वेश्चन आपसे कि केमिकल कैस्ट्रेशन, इस पे डिबेट क्यों हो रही है, जबकि पाकिस्तान के कानून में तो ऑलरेडी जो एक्सट्रीम सजा है वो मौजूद है कि जी फांसी आप दे दें, तो मौत से बढ़ के तो और कोई सजा नहीं हो सकती। अगर आप उस रेप के मुजरिम को जिंदा रख रहे हैं तो आप नहीं समझते शीरीन साहिबा कि वो किसी और तरीके से सोसाइटी के लिए हार्मफुल, नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए ये एक पहलू है बहस का, और बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट जो है और वो सबसे ज्यादा जाहिर है, उससे और सख्त सजा क्या हो सकती है। बट कोई देखिए बहस करने से कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो असल डिबेट होना चाहिए कि हम किस तरह अपने मुआशरे को बदलें। अब देखिए वो जो बच्ची को कराची में जिनसी तशद्दुद करने के बाद उसको जलाया गया और वो क्या उनका हमसाया निकला। ये फैमिलीज के अंदर बच्चों के साथ तशद्दुद होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है। जहाँ हम ज़हनियत बदले, मुआशरे को बेहतर करें। सिर्फ सजा एक तरफ अपनी तरफ है, लेकिन कानून तो हरकत में उसी वक्त आएगा जब जुर्म होगा। लेकिन जुर्म होना क्यों चाहिए? ये हम अपनी औरतों को क्यों इस तरह देखते हैं? और ये कहना कि जी औरत ये ना करे वो ना करे तो फिर सही रहेगी। मैं कहती हूँ कौन होता है औरत को कहने के लिए कि आप लिबास ये पहने या आप इस रास्ते से जाएं या आप रात को गाड़ी ना चलाएं। ये अप्रोच ही गलत है। अगर एक मर्द अपने आप को संभाल नहीं सकता,
اپنی نظر میں عزت اس کی نہیں ہے عورت کی تو وہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لے تو بہت بہتر ہوگا. Absolutely. Thank you very much شیریں مزاری صاحبہ for saying this. ڈبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ, مشہور و معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. مجھے جوائن کر رہی ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ, وہ بھی مشہور و معروف سماجی رہنما ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے کامران مرتضی صاحب. لیگل پوائنٹ آف ویو ان سے ہم لیں گے کہ ریپ کے مجرم کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین سینئر صحافی اور تجزیہ کار, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑا ایک دبنگ اپنا اوپینین رکھتے ہیں, ان اپولوجیٹک, انصار عباسی صاحب. انصار عباسی صاحب, ریپ کے مجرم کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ اس میں ایک نئی بحث میں ایڈیشن ہو گئی ہے کہ جی سریعام پھانسی کی بحث تو چل رہی تھی بٹ اب کیسٹریشن آ گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پھانسی, سریعام پھانسی, کیسٹریشن. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسک بات جو بحث ہو رہی ہے نا ساری, میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس بھی آپشن ہے, آپ کے پاس بھی نہیں, ایون ہماری پارلیمنٹ کے پاس بھی آپشن یہ ہے کہ نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ کیا نہیں. مین میڈ لا کی حد تک تو ہو سکتا ہے. اگر آپ اس ملک کے آئین کو پڑھیں اور اس مقصد کو دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا, تو ہمارے لیے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ اگر ریپ ہے تو اس کی کیا سزا ہے, اگر زنا ہے تو اس کی کیا سزا ہے, قتل ہے تو اس کی کیا سزا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ مین میڈ لا جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا قانون بھی بنا سکتے ہیں. لیکن میں جو پرائم منسٹر نے تجویز دی ہے کیسٹریشن کی, دیکھیں میں آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ میں ایک منٹ, میں پرائم منسٹر نے جو بات اوور آل سب کی نا, فحاشی اور یانیت کی بھی بات کی, سب بہت سی باتیں کی, میں 100% نہیں بلکہ 200% اسے اتفاق کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اتنے بڑے جو کرمنل مائنڈڈ, بیمار ذہن, سک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو اس قسم کا, اور میں آپ کو بتاؤں شاید مرڈر سے, میری نظر میں مرڈر سے زیادہ بڑا شاید کرائم ریپ ہوتا ہے میری نظر میں, آئی مے بی رانگ, میری نظر میں. تو ایسا کرمنل مائنڈ میں صرف جو ڈفرنس میرا ہے پرائم منسٹر کے یہ جو انہوں نے دوسری تجویز دی کیسٹریشن کی, کہ دیکھیں کیسٹریشن سے آپ ایک بندے کو ایک اس کی ایبلٹی سے معزول تو کر دیں گے, لیکن اس کا کرمنل مائنڈ تو چینج نہیں ہوگا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کریں گے وہ بھی میرا خیال ہے کہ کیمیکل, اس کے لیے آپ کو پرماننٹ میرا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد وٹ ایور آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے میڈیکل, وہ 3 سے 5 سال کے لیے کیمیکل کیسٹریشن جو ہے وہ وٹ ایور. لیکن دیکھیں اس کا کرمنل مائنڈ جو اتنا گندا شخص ہے کہ ایک عورت کا ریپ کر سکتا ہے, ایک بچے کا ریپ کر سکتا ہے, وہ کسی اور طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ معاشرے کے لیے ہی از اے تھریٹ. ٹھیک, میری دانست میں جو ہے نا آپ لا بنا لیں, اچھا یا تو ایک تو آپ پھانسی کی سزا اور سرعام عبرت بنائیں. دیکھیں دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے جو ہینیس کرائم ہیں ان میں آپ لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں, تاکہ جو لوگ دیکھنے والے ہوں ان کے دل میں ہوں, آپ ہوں, ہم سب ہوں, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ کرائم کیا ہم اتنے ڈر جائیں کہ ہمارا نہیں. لیکن آپ نے شیریں مزاری کو سنا نا, وہ اس سے ایگری نہیں کرتی, اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہماری ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے, ہمارا جی ایس پی پلس. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نہیں اگری کر رہی تو شی از گوئنگ اگینسٹ وٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز, یہ ہمارا آئین نہیں کہتا. اور پھر سب سے بیسک بات ہے کہ چونکہ ہماری آئین کا ٹوٹل ایمفسس ہے قرآن اور سنت کے اوپر, یہ بات وہ نہیں ہے جو قرآن اور سنت. سر ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا, اس میں لوگ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, ایوریبڈی از فری ٹو ہیو دی اوپینین. میں بھی تو ڈیبیٹ ہی بات کر رہا ہوں. ایبسولوٹلی آپ بھی ڈیبیٹ ہی کر رہے ہیں. لیٹ می گو ٹو فرزانہ باری اینڈ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ, واٹ ڈو یو سے, ریپ کے مجرم کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ آئی ہوپ کہ آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کو سنا ہوگا. پھانسی, سر عام پھانسی, یا اب جو پرائم منسٹر نے ایک نئی تجویز دے دی کیسٹریشن کی؟ دیکھیں یہ ساری جو ڈبیٹ انہوں نے نئی شروع کی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تو جو اصل مسائل ہیں اس سے سمپلی توجہ ہٹانے کی بات ہے. سب سے پہلے تو اس سے جو سزائیں ہیں, پہلے تو آپ کو ان سے یہ پوچھے کہ جو سزا ہے اس وقت ہمارے قانون میں, جو کہ ایک سخت ترین سزا ہے, آپ کو پتا ہے ریپ کی سزا جو ہے لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی ہے, مطلب سزائے موت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں
जहां हजारों रेप होते हैं, कितने लोग हैं जिनको फांसी पे लटकाया गया है, कितने लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं। रेप के केसेस में कन्विक्शन रेट 3% भी नहीं है। बजाय इसके कि इन चीजों की तरफ आप तवज्जो दें, एक शिद्दत पसंदी के तो वैसे ही हमारे समाज के अंदर बहुत रुझानात हैं, और अब उसमें एक ये नई बहस छिड़ गई है जिससे ये पता चलता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रायोरिटीज क्या हैं कि श्री मजारी साहिबा को भी नहीं, प्रायोरिटी नहीं, कि उनको ये नहीं पता कि रेप असल में रेप है क्या, रेप की अंडरस्टैंडिंग इससे साबित पता चलता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। देखिए, रेप का जो एक सेक्सुअल एक्ट है वो सिर्फ सेक्सुअल एक्ट नहीं है, वो एक तरह से वो एक मतलब पावर एक्ट भी होता है और वो एक वायलेंस का एक्ट है। अब आप ये देखें कि जो सेक्सुअल एक्ट है, कि अगर ये हम कहें कि क्योंकि ये मर्द जो है वो सेक्सुअल उसके अंदर इतनी अर्ज आ जाती है कि वो औरत पे हमलावर होता है, तो सारे मर्दों के अंदर वो सेक्सुअल अर्ज होती है, सारे इंसानों के अंदर होती है, लेकिन सारे मर्द तो सेक्सुअली रेप नहीं करते। तो रेप जो है उसको देखने की जरूरत है कि रेप इज अबाउट वायलेंस, रेप इज ऑल्सो अबाउट पावर। तो अब अगर हम इस तरह देखें तो रेप तो अगर आप किसी को, या वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि अब इस पे मैं बात करना चाहूंगी कि बिल्कुल कैस्ट्रेशन पे करें आप। अगर आप इम्प्यूटेशन भी कर दें, ठीक है, काट भी दें, तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि जो शख्स जिसका आप जिनसी उस काट भी दें कि वो ये काम नहीं दोबारा करेगा। मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के साथ औरतों के रेप होते हैं, बच्चियों के रेप होते हैं। आपको याद होगा वो जो एक जैनब एक केस था जिसमें रॉड, एक मौलवी जो था वो उसके प्राइवेट पार्ट में वो रॉड उसके डालता था। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ तो समझें, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करें। जिन मुल्कों की वो मिसाल दे रहे हैं, देखिए कहीं जगह पे ये वॉलंटरी तौर पे लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं जो केमिकल कैस्ट्रेशन है, ये बेसिकली जो आपके टेस्टोस्टेरोन है उसको सप्रेस करने का, ये वो लोग हैं जो लेकिन एक पॉइंट ये भी है ना फरजाना साहिबा कि ये केमिकल कैस्ट्रेशन उन मुल्कों में है कि जहां पे एक्सट्रीम फांसी की मौत की सजा नहीं है, ये उन मुल्कों में केमिकल कैस्ट्रेशन यूज की जाती है। नहीं उन मुल्कों में भी है, नहीं गरीदा, उन मुल्कों में भी है, मतलब अमेरिका के भी चंद स्टेट्स में है, उन मुल्कों में भी है जहां पे डेथ सेंटेंस है, मगर ये कोई ऑप्शन हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है कि एक सेकंड गरीदा मैं ये मुकम्मल कर लूं। कैस्ट्रेशन का ये मतलब होता है कि वो एक आपको इंजेक्ट करते हैं जिसकी आपसे सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, लेकिन उसको हर कुछ साल के बाद वो आपको दोबारा वो इंजेक्शन देना पड़ता है। यहाँ ये वो हमारा मुल्क है। मेरी आज मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, एक सेकंड गरीदा बात खत्म करने दें, अपनी मैं एक दोस्त से आज ही बात कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि देखो फरजाना, इस मुल्क में तो हम पोलियो के कतरे तो बच्चों को पिला नहीं सकते, तो हम जिनको जाके केमिकली कैस्ट्रेशन करेंगे, हम कहाँ फिर उनको जाके ढूंढते रहेंगे और हर 2-3 साल के बाद उनको इंजेक्शन देंगे। इस किस्म की बहस मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बेमानी है। एक हम मुहज्जब दुनिया के अंदर रह रहे हैं। मुझे ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा की तरफ जाने दें। ताहिरा साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी तारिक साहब, आप क्या कहती हैं? एक तो पहले डिबेट हो रही थी कि जी फांसी होनी चाहिए कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, वो डिबेट अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अब एक नई चीज आ गई कि जी कैस्ट्रेशन कर दें। आप समझती हैं कैस्ट्रेशन के मामले पे बहस होनी चाहिए या बिल्कुल ही बेमायनी बहस है, जैसे फरजाना साहिबा ने भी कहा? अस्सलाम वालेकुम। जी और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक गम वाली बात है, परेशान कुन बात है और निहायत रंजीदा कर देने वाली बात है कि जो गैंग रेप पेश आया एक खातून के साथ लाहौर मोटरवे रिंग रोड के ऊपर चंद रोज पहले, उसका बिल्कुल फोकस कहीं से कहीं हटा दिया गया है। हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाया गया है, हमारी तवज्जो हटाई जा रही है, हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। मैं तो समझती हूँ कि हम शर्म से डूब मरे, हम सब लोग इसमें। मैं आपको बिल्कुल अलहदा नहीं कर रही, अपने आप को भी अलहदा नहीं कर रही, आपके मेहमानों को भी अलहदा नहीं कर रही, आपके प्राइम मिनिस्टर को भी अलहदा नहीं कर रही, आपके पंजाब की चीफ मिनिस्टर को भी अलहदा नहीं कर रही। और सीसीपीओ के बारे में तो मैं समझती हूँ जितना कम बात की जाए वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसको तो अभी तक बरतरफ नहीं किया गया। और वो जो गैर माफी कब की बात आई है वहां पे बात रुक गई है। उसको तो खैर हम मानते ही नहीं है माफी, वरना काफी माफी को उसकी तो बरतरफी लाजिम है।
देखिए, इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए रेप सर्वाइवर खातून के ऊपर। उनको हम विक्टिम ना कहें क्योंकि वो खुदा के फजल करम से जिंदा हैं, उनको हम सर्वाइवर का लफ्ज इस्तेमाल करें। और जहां जहां तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर, तमाम अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम मुआशरे में जो गुफ्तगू हो रही है वो ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जिना बिल जबर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बदफेली, इज्जत लूट ली, हरामकारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यानी ये तो इस्मत दरी हो गई। ये किस तरह के अल्फाज हैं? हम मुआशरे को ठीक इस तरह करेंगे, इस तरह के अल्फाज ढूंढकर इस्तेमाल करके? नहीं, हमें रेप को रेप कहना है और गैंग रेप को इज्तिमाई रेप कहना है उर्दू में। और हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि मुतासिरा खातून के साथ बहुत खंदा पेशानी के साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें, उनको तिब्बी इमदाद की जरूरत है, गायनिकोलॉजिकल इमदाद की जरूरत है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इमदाद की जरूरत है। उनको अस्पताल में ले जाकर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और मेडिको लीगल रिपोर्ट को दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस तो हर चीज की टेम्परिंग करती है, मेडिको लीगल रिपोर्ट की टेम्परिंग करती है, एविडेंस विटनेस टेम्परिंग करती है, डीएनए की टेम्परिंग करती है, शहादतों की टेम्परिंग करती है। हर चीज, शनाख्त परेड कराएंगे तो वो भी बदनीयती पर मबनी कराएंगे। सब कुछ को ठीक करने के लिए इन खातून को कानूनी इमदाद की भी जरूरत है। अच्छे बेहतरीन इनको वकील पहुंचाए जाए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ताहिरा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे। ताहिरा अब्दुल्ला, फरजाना बारी, अंसारा बासित साहब और कामरान मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। रेप के मुजरिम की सजा क्या होनी चाहिए, तमाम एस्पेक्ट्स, कानूनी भी, समाजी भी, सियासी भी, मजहबी भी, इस्लामी भी, इन सब पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रेप मुजरिमान को सजा किस किस्म की मिलनी चाहिए? फांसी हो, सरेआम फांसी हो, या अब कैस्ट्रेशन कर दी जाए? मेरे साथ मौजूद हैं अंसारा बासित साहब, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, फरजाना बारी साहिबा और हमें ज्वाइन कर लिया है कामरान मुर्तजा साहब ने भी। अंसारा बासित साहब, जो डिबेट हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि इशू ये नहीं है कि जी आपने सजा क्या देनी है, फांसी देनी है, सरेआम फांसी करनी है, कैस्ट्रेशन करनी है। जो फरजाना कह रही थी कि इशू ये है कि आपने रेप के कन्विक्शन, कितने केसेस में आपने कन्विक्शन की है और आपने उसकी रोकथाम के लिए कानून पे अमल कितना किया? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल फेसेट्स हैं इस पूरे इशू के, और इसमें बिल्कुल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं कि आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मुझे अपनी पुलिस के ऊपर कोई एतबार नहीं, मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन के ऊपर कोई एतबार नहीं। मुझे, आपने कोयटा का वाकया देखा, वो जो अचकजई साहब वाला वीडियो, और अगर अदालत ऐसे फैसले करेगी जो मुझे अदालत के ऊपर कोई एतबार नहीं। आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसको कितना ओवरऑल कर सकते हैं हम, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन तो यानी कि असल इशू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक कर लें। असल इशू ये नहीं कि आप सरेआम फांसी दे दें। नहीं, और भी है। देखें, सरेआम फांसी या इस्लामिक जो पनिशमेंट्स हैं वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट डेटरेंस। डेटरेंस जो है ना, उससे बेहतर इफेक्टिव जो निशान इबरत बना के जो डेटरेंस पैदा होता है। अभी शीरी मसारी ने आपके सामने फैक्ट्स रखे कि सरेआम फांसी से कम नहीं हुआ। चले, मैं आपसे कहता हूँ, शीरी मजारी साहबा को कह रहे हैं, डॉक्टर शीरी साहबा को, आप रिसर्च, और आप रिसर्च करवाएं अपने रिसर्च टीम से कि जिस वक्त पप्पू का केस हुआ था लाहौर में जनरल जियाउल हक मरहूम के जमाने में, और उन्होंने उसके मर्डर को टांगा था, उसके आप 5 साल बाद देख लें कि कितने इस किस्म के केसेस हुए थे जो छोटे बच्चों के साथ कोई ज्यादती हुई थी। नंबर एक बात। अच्छा, चूंकि आपके प्रोग्राम से पहले मैं जहां पे था तो उन्होंने खुद से तालिबान का नाम ले लिया। तालिबान ने जिस वक्त लोगों की, फर्ज करें, कुछ हैंगिंग की, तालिबान में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और इस सब का क्या हालत थी उस जमाने में, उसके बाद और उसके पहले को ले लें। और इसके अलावा और सऊदी अरब का कंपैरिजन करें अमेरिका से, और आप ईरान का कंपैरिजन करें ब्रिटेन से। इन दो ममालिक का उन दो ममालिक से कंपैरिजन करके आप मुझे बता दें कि कितना कंपैरिजन है, आपको पता लग जाएगा कितना फर्क है। और देखें, एक फलसफा है हम सब का, एक फलसफा है जिस ज़ात बारी ताला ने हम सब को पैदा किया है। जो फलसफा मेरे अल्लाह का है, जो मेरे अल्लाह ने बात कर दी ना, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो
मतलब है कि इम्प्लीकेशंस हैं या जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं पूरी सोसाइटी के ऊपर, वो मेरी और आपकी समझ से बाला सर, आपने इससे पहले सरेआम फांसी के हक में जो दलाइल दिए हैं, खासतौर पर जनरल जिया के दौर को कोट करके, फरजाना बारी साहिबा, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट प्लीज? बिल्कुल जी, बल्कि देखें ये सारी तबाहियां तो शुरू ही उस वक्त के बाद से हुई हैं। ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फैक्चुअल बात नहीं है कि उसके बाद से जी कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखें, बल्कि ज़ियाउल हक के दौर में जितना जिना बिल जबर जिसको हम कह रहे हैं, जितना रेप के केसेस होते थे, उसमें देखें कि जेलें भर गई थी, ये तो एडल्ट्री केसेस में तब्दील हो गया, एडल्ट्री केसेस में हुदूद ऑर्डिनेंस की वजह से। जी रेप होता था मगर औरत से कहीं कहा जाता था कि 4 मुसलमान गवाह लेकर आओ, और जब वो नहीं लेकर आ सकती थी तो उसी के ऊपर जना का मुकदमा लगा के और उससे जेलें हमने भर दी थी। तो मैं तो समझती हूँ कि ज़िया के दौर के जो मसाइल जन्म लिए हैं उसका खमियाजा मेरा तो वैसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि पप्पू के केस के बाद चूंकि बच्चे के साथ ज्यादती के बाद मर्डर हुआ था, उसको आप बता देंगे ऐसे ही कितने हुए थे? एक पप्पू के केस का भी एग्जांपल दे रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, खासतौर पर बच्चों के रेप। आपको बता देती हूँ जी, लाहौर में वो केस हुआ था, उसके बाद बहुत केसेस होते रहे। नहीं बताएं कितने हुए, जरा आप रिसर्च करके बताएं, अभी नहीं बता सकेंगे। देखिए रिसर्च करके बताएं। मैं इस वक्त और इमरान अली के केस के बाद कितने हुए? ज़ैनब के जो मर्डर को हमने फांसी दी, चूंकि हमने निशाने बनाया, हर रोज केस हो रहे हैं, के केस में आप एवरीडे। फरजाना बात कंप्लीट कर लें जी। फरजाना, या मुझे बात खत्म करने दें। अंसार अब्बासी साहब ने मिसाल दी है कि सऊदी अरब और अमेरिका की, तो कम से कम उन मुल्कों की तरफ भी देख लेना जहां तो ना फांसी की सजाएं हैं और ना ही कोई कोड़े लगते हैं और ना ही कुछ, जिस तरह आप देख लें कि बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे, जहां सबसे कम क्राइम रेट है, जहां खासतौर पे औरतों के खिलाफ भी सबसे कम क्राइम रेट है, वो ममालिक है जहां ना फांसी की सजाएं। तो कहने का मकसद ये कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो इन जराइम के पीछे जो सोशल रीजंस हैं, जो मुहर्रकात हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, आप कह रही हैं कि उनको ठीक करें, आप कह रही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उनको भी ठीक करें। इस दोनों इस बात पे अंसार साहब और फरजाना साहिबा एक ही पेज पे हैं। क्रिमिनल आप लोगों की तरबियत करें, आप सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट करें, नॉट द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट। और मेरे साथ एग्री करेंगी कि आप शर्मो हया मर्दों में भी पैदा करें, औरतों में भी पैदा करें। सिर्फ औरतों के लिए शर्मो हया जरूरी नहीं है। लेकिन सर हमारे मुआशरे का एक और भी इशू है ना, हमारे मुआशरे में औरत के लिए शर्मो हया के पैमाने पर कुछ और होते हैं। नहीं, जो भी पैमाना हमारा दीन ने दे दिए, जो भी पैमाने। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ताहिर साहब को आवाज आ रही है मेरी? जी ताहिर साहब, आपका कमेंट पे लेना चाहूंगी, आप डिबेट सुन रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये गुफ्तगू बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। मैं फिर से अपने आप को दोहराऊंगी, आप ये समझ रही होंगी कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही। आप कहें, मैं आपने जो भी कहना कि ये गुफ्तगू ही नहीं है, ये गुफ्तगू ही गलत है। आप किसी को पकड़ेंगे, उसका अदालत में लेके जाएंगे, उसका केस होगा, वो कन्विक्ट होगा, तो फिर हम बाद में आपके पास बहुत वक्त पड़ा होगा देखने के लिए कि सजा क्या देनी है और क्या नहीं देनी। और जहां तक कुरान का ताल्लुक है, यहाँ जिक्र हुआ कुरान का, मैं आपसे मोहतरमा गरीदा साहिबा, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप कुरान उठाकर ले जाएं तर्जुमे के साथ, अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, जिस तरह मर्जी आप लेके जाएं किसी सही आलम के पास, किसी प्रॉपर रिलीजियस स्कॉलर के पास, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में बेशक ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, फेडरल शरीयत कोर्ट में ले जाएं, शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, उनसे पूछें कि वो आपको बताएं कि कुरान के अंदर रेप का कहाँ जिक्र है और फिर रेप के लिए सजा का क्या जिक्र है। बस मैं इतना ही कहूंगी, वरना मैं इससे ज्यादा कहूंगी तो कल को ब्लास्फेमी के चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। और हर तरह आपसे मैं कह रही हूँ कि अब आपका फर्ज, क्योंकि यहाँ कहा गया कि कुरानिक पनिशमेंट दी जाए, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मालूम करके अगले प्रोग्राम में बताएं कि कुरान में कहाँ रेप का जिक्र है। नहीं, हम इसी प्रोग्राम में ढूंढ लेते हैं, हम इसी प्रोग्राम में जवाब ढूंढ लेते हैं। हमारे साथ लॉयर मौजूद है। नहीं होता, नहीं, गूगल नहीं करना। नहीं, लॉयर मौजूद है, कमरान मुर्तजा मौजूद है, लॉयर मौजूद। लॉयर सुनिए गरीदा साहिबा, ना मैं जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ, ना मैं लॉयर की बात कर रही हूँ, ना मैं प्रोफेसर की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप इस्लामिक स्कॉलर, ऐसे इस्लामिक स्कॉलर जो कि सबको काबिल कबूल हो, चाहे कोई अहले तशी हो या सुन्नत हो, वहाबी हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो या सलफी हो, कुछ ही हो, ऐसे आप लेके जाएं
पूछे ये सवाल, और ये गूगल ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, लॉयर से भी ना पूछिएगा, जर्नलिस्ट से भी ना पूछें। आपका फर्ज बनता है कि ये आपके प्रोग्राम में ये सवाल उठाया गया है, आप इसका जवाब लेकर आएं और अपने अगले प्रोग्राम में इसका जवाब दें कि कुरान में कहाँ रेप का जिक्र है और उसकी सजा क्या तजवीज की गई। कामरान मुर्तजा साहब काफी देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं। कामरान साहब, आपने तीनों पार्टिसिपेंट्स की बात सुन ली। बुनियादी नुक्ते पर तो सब एग्री कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक होना चाहिए। जो आगे इख्तलाफ है, जो इस वक्त सोसाइटी भी डिवाइडेड है, कौमी असेंबली डिवाइडेड है, आज सेनेट तक में बात हो गई कि सरेआम फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड ओपिनियन है इस वक्त सोसाइटी में, बट इस वक्त पूरी कौम जज्बाती हुई हुई है। क्या होना चाहिए इसमें? फिर ताहिरा साहिबा ने भी एक बड़ा जेन्युइन, बहुत जबरदस्त सवाल उठाया है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने। कामरान मुर्तजा साहब, देखिए, जो हद की सजाएं हैं, और अगर कुरान को और हदीस को हम नबी की सुन्नत को हम इकट्ठा करके देखेंगे, जो हद की सजाएं हैं वो, उसमें मेरा ख्याल है कि शायद हम उसको क्वेश्चन भी नहीं करने के लिए उसके मजाज नहीं है। और अगर वो नबी की ज़िंदगी में भी उसी तरह से होता रहा है तो भी जो है ना हम उस तरह से जो है ना उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमको एज इट इज़ करना है उसको। हम ना उनसे खुदा न खास्ता आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ने की ना में सकत है ना हिम्मत है। तो जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो उन मामलात में सजाएं होती रही हैं या जो प्रूफ उसके लिए रिक्वायर्ड थे, उसी तरह से उसको लेके चलना पड़ेगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मसला यहाँ पे ये नहीं है। मसला यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मर्द की तरफ से जो है वो औरत की जो है एक इज्जत एहतराम उसके जहन में होना चाहिए, जो दीन ने भी दिया है और जो हमारा मतलब कल्चर का भी हिस्सा है। इसी तरह बच्चों से प्यार मोहब्बत। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने औरत का एहतराम भी छोड़ दिया है, बल्कि हमने हर चीज़ का एहतराम छोड़ दिया है। और हर चीज़ जो है ना वो हमने अब जो कुछ आपके पास हो रहा है ये सिर्फ जज्बातियात की उसमें हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों कैस्ट्रेशन की सजा तजवीज कर दी और इस पे गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है। कामरान साहब, ये कहाँ से ले आए? कैस्ट्रेशन जो है ना, ये अल्लाह उनको हिदायत दे। ये बात जो है ना देखिए, ना इसको जो है मजहब दुनिया जो है ना ये तस्लीम करेगी, और ना ही जो है ना वो हमारे मजहब के मुताबिक उसकी मुताबिकत में है। आप मजहब की मुताबिकत में मामला रख लीजिए, आपका माशरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप इस हद तक भी नहीं जा सके कि जो कोड़ों की सजा थी जो इसके साथ, उसको भी जो है ना वो भी सस्टेन नहीं हुई, वो भी आपको खत्म करनी पड़ी। तो जब इस हद तक जो है ना आप वो नहीं कर सकते, तो ना आप मौजूदा दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, ना मजहब के साथ चलने के लिए तैयार है। तो अगर दोनों के साथ अगर आप चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कास्ट्रेशन वगैरह जो है ना ये आपको नुकसान देगी। ये जज्बातियत में इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि हम जो है ना पहले जो है सारा सच नहीं बोलते। ये अचिंजी साहब वाले केस का भी मामला आया, दूसरे भी मामला आए, तो ये होता पता क्या है, ये जब केस रजिस्टर करवाते हैं ना, उसमें झूठ की कोशिश कर देते हैं। पहले दिन जो है ना वो मामला जो है वो वहां से गलत होना शुरू होता है, वहां से झूठ की अमेजिश शुरू होती है कंप्लेनेंट पार्टी की तरफ से। फिर पुलिस जो है उसको खराब करती है, इन्वेस्टिगेट प्रॉपर नहीं करती, फिर प्रोसिक्यूशन उसको खराब करती है, वो प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं करती। और रही सही कसर जो है ना, जब मामला किसी अच्छे वकील के हाथ में जाता है, वो जब उसका झूठ अलहदा करता है तो वो ऐसा लगता है कि वो जो सच उसमें थोड़ा बहुत था वो भी शायद झूठ का कोई वो है। तो ये हमको अपने रवैये बेहतर बनाने हैं। हमको जो है ना वो बिल्कुल जो सही सच है वो सही वो करना है, सामने लाना है। और उसके बाद जो है ना वो पुलिस को ठीक होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को, और कोर्ट का उसके बाद आता है। ये अपना अफसर साहब ने ये कहा ना चक्सी शाह वाला केस, अगर ये कहें तो मैं इंसिडेंटली इस केस में वकील था, अगर कहें तो मैं इनको रिकॉर्ड भिजवा देता हूँ, वो रिकॉर्ड देख के इनको रोना आएगा कि उस केस की, इतने अहम केस की जो है ना इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई है, उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे हुई है, वो केस डैमेज कैसे हुआ है। ठीक है, अच्छा साहब, लास्ट कमेंट्स प्लीज। बस मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि बस मेरा यही कि जी इट इज़ नॉट ओनली पनिशमेंट्स अलोन, हमें एक पूरा पैकेज है जिसको हमें इम्प्रूवमेंट अगर लानी है तो उसमें शादियां भी आसान बनानी होंगी। देखिए हमारे यहाँ शादियां बड़ी मुश्किल होती हैं, शादियों को आसान बनाना पड़ेगा। फहाशी और उरियानियत जो प्राइम मिनिस्टर ने कल बात, शादीशुदा था नहीं, मैं जो मरकजी मुजरिम है, नहीं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल देखें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फहाशी और उरियानियत को खत्म करना पड़ेगा इस मुल्क से हमें।
शर्म व हया को प्रमोट करना पड़ेगा। सर ये आप बड़ी वेग टर्म्स की तरफ नहीं, जा no, रहे हैं। वेग अब नहीं इस पे है। एक और प्रोग्राम हो वेग सकता नहीं है, है। बट मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। वेग नहीं है। ये बड़ी वेग टर्म्स है, It's not डिबेटेबल वेग। टर्म्स है ये सारी। नहीं, वेग नहीं है, वेग नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस किस्म के बदबूदार ड्रामे हैं जिसमें बाप अपनी सौतेली बेटी के साथ साला बहनोई पता नहीं किस किस किस्म के, और यही रिलेशनशिप क्या यही ड्रामों में होता है? क्या यही हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है? क्या गन दिखाते हैं ये? जिस किस्म के इश्तिहारात और डांसेस दिखाते हैं हमारे नॉर्मल टेलीविजन चैनल्स, जिस किस्म के फिल्में हमारी दिखाई जाती हैं, मुझे बताएं। मतलब अभी बादशाही मस्जिद के बाहर एक फरजाना कुछ कहना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ शर्म आती है ये सब चीजें देखकर। और ये किस किस्म का माशरा आप बना रहे हैं? तरबियत हो नहीं रही, तरबियत हो नहीं रही। आप लोगों को सीधी तरफ दिखा नहीं रहे, लोगों को आप दीन पढ़ा नहीं रहे, और आप उल्टी सीधी चीजें आपने खुली छुट्टी। फरजाना साहिबा क्विकली प्लीज, फिर मैं प्रोग्राम बंद कर दूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखें, जिनकी ये बात करें, ये सारे वाकयात होते हैं यहाँ पे। तो ये हम पिछले कई अरसे से ये गोलरा में बाप अपनी बेटी को, सगा बाप अपनी बेटी को रेप कर रहा था, उसका केस हम अभी तक लड़ रहे हैं। जहां तो कायदे आजम के मज़ार के अंदर औरतों के रेप हो जाते हैं, मतलब जिनकी वो कह रहे हैं कि इनको बुरा लगता है कि वो ड्रामों में आ जाते हैं, उसको निशाने पर बनाना चाहिए कि नहीं? उन रियलिटीज को चेंज कर, उसको निशाने पर बनाना चाहिए कि नहीं? मुझे आप बताएं। चले आप बता दें। बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं, निशाने इबरत, मैं निशाने इबरत की बात कर रहा हूँ। निशाने इबरत पे जोर दे रहे हैं। उसको 3 दिन लटकाना चाहिए। उसको जो रदाल वो जो है ना फसाद फिल अर्द की सजा है, उसका एक बाजू काटना चाहिए, एक पाँव काटना चाहिए, और 3 दिन टांगना चाहिए उसको, ऐसे शख्स को सरेआम चौक में टांगना चाहिए। सजा है हमारे सबसे सख्त सजा हमारे कानून में जो किसको देखी है हमने सजा? आप पिछले 20 सालों में बता दें किसी एक को ऐसी सजा हुई हो? यही तो बात करें कि नहीं हो रही ना। इसी बात पे तो आप और फरजाना साहिबा एक पब्लिक हैंगिंग नहीं हो रही, पनिशमेंट नहीं हो रही, निशाने इबरत नहीं बनाया जा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो निशाने इबरत बनाने की बात कर रहा हूँ। नहीं बनते, सजाएं दे दे, उसकी तशहीर कर दे, वो ये निशानी इबरत ही है ना कि अगर आप इन केसेस के अंदर, अगर आपने फांसी की सजा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रखी हुई है, तो आप लगाएं ना फांसी और फिर उसकी तशहीर करें। उसको लोगों के सामने एक मजीद वायलेंस, हमेशा वायलेंस। आप देखें ये कितनी गलत बात है। तो आगे इतनी पुरतशद्दुद सोसाइटी है। बिल्कुल इसमें गलत बात यह है कि मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि ये हमारी शरीयत हमें बताती है कि जब इस तरह की सजा हो, जब कोड़े मारे जा रहे हो, तो अहले ईमान को कहा गया आप खड़े हो जाएं, आप देखें ये बात, ताकि इबरत हो। मैं कह रहा हूँ ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारी शरीयत कहती है, और हम कहते हैं कि ये तशद्दुद वाली बात वायलेंस हो गई है। मुझे इस बात पे बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। उस जमाने की बातें हैं जब जेल खाने नहीं होते थे। देखें ये बात बड़ी गलत है, बहुत गलत बात है। जेल खाने की उस वक्त भी होते थे जेल खाने, ये कौन कहते नहीं होते थे? इज्तिहाद का आप लोगों ने तो इस्लाम को इररिलेवेंट करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में इज्तिहाद का जो अब देखें, इनको ये भी नहीं पता कि इज्तिहाद जो अल्लाह के अहकामात है वहाँ पे नहीं इज्तिहाद होते। अब हम इनको ये भी नहीं पता कर चुके हैं कि मुझे इस पे इनको ये भी बेसिक बात नहीं पता, सीरीज ऑफ प्रोग्राम करना पड़ेगा। इनको ये बेसिक बात नहीं पता है कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर इज्तिहाद नहीं हो सकता। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें इंसार साहब, एक सवाल का जवाब। मैं जो बात कर रहा हूँ इज्तिहाद की बात क्या कर रही है? आपने हुजूर पाक का आखिरी खुतबा पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पे गुलामों के बारे में उन्होंने कहा कि गुलामों के आपके लिए अच्छा है कि गुलाम जो है उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ठीक है। अपने गुलाम को उन्होंने आजाद किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ममानत नहीं की। आज हम ये करते हैं कि हम मुसलमान जो है हम गुलामी का, ये डिबेट इस्लाम में आके तो गुलामी खत्म की, मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। हमारे दीन ने तो गुलामी आके खत्म की, टाइम खत्म हो चुका है। इस डिबेट को हम किसी और प्रोग्राम के लिए जरूर रखेंगे। फरजाना बारी साहिबा, कामरान मुर्तजा साहब, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, अंसार अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।